Hello friends, welcome back to my channel. Myself Khushi Kucheria, and we are working on series called Function of Management of OCM class 12th of your OCM subject chapter number 2, and till now we have completed part 1, and now we are henceforth proceeding with part. In this part 2 section, we in part 1 section actually we came across planning, the functions of planning, function of management, and first function is planning. We completed the meaning, definition, and importance of planning, and by understanding planning we are moving on to the next step of functions of management, that is organizing, in this video. So, in case of organizing, we are also going to follow the same drill, that is meaning, definition, and importance. So, let's begin by knowing first the meaning of organizing. Talking about planning, we saw, taking an example for planning, एक एग्जाम्पल अगर लेके हम समझे कि प्लानिंग क्या है, तो हमने पढ़ा था कि अगर मुझे मेरे कोई भी गोल को प्लान करना है कि मैं उस गोल तक कैसे पहुंचूंगी, मेरे रास्ते में क्या क्या तकलीफ़ें आने वाली है और उस तकलीफ़ों को पार करके मैं वहाँ तक कैसे पहुंचूंगी, ये मैंने एक दिन बैठ के 5 मिनट में मैंने पहले प्लान कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्लान बना लिया कि इतना पढ़ाई करना है, इतना 2 घंटा पढ़ाई करना है, इतना कम खेलना है, इतना कम फ़ोन यूज़ करना है, एंड इतना इतना मुझे पढ़ाई करके मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, एंड अगर मैं ऐसे सब करूँगा तो आई विल बी एबल टू स्कोर 80% और सम परसेंटेज अबव माई लेवल, करेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो, उसके लिए प्लान कर रहे हो। नाउ द सेकेंड स्टेप आफ्टर प्लानिंग इज ऑर्गेनाइजिंग. व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग नाउ? नाउ आफ्टर प्लानिंग व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज, मैंने उस पर्टिकुलर गोल के लिए अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए, मैंने अलग अलग यूट्यूब वीडियोस या फिर एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखना शुरू कर दिया, मैंने एक प्रोसीजर शुरू कर दिया जहाँ पे मैं कलेक्शन ऑफ मटेरियल और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, कोई भी चीज़ को एक प्लान बना हुआ है। प्लानिंग मतलब बैठ के आप सोचते हो कि ये करने वाले हैं, हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। आफ्टर दैट, आफ्टर द प्लानिंग स्टेप वी हैव ऑर्गेनाइजिंग, वी स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। अगर एक और एग्जाम्पल अगर हम लेके समझे, तो अगर आप सुबह उठ के ये प्लान कर रहे हो, मैं सुबह उठी बेड पे, आई हैव नॉट गेट अप, मैं सिर्फ खड़ी होके बैठी, सॉरी सो के बैठी हूँ, एंड आई एम जस्ट प्लानिंग ऑफ माई डे कि ओके टुडे माई डे इज गोइंग टू बी लाइक दिस। मैं उठूंगी सुबह, ब्रश करके आई डू नाश्ता, देन आई डू स्टडीज फॉर 2 आवर्स, देन ऐसे ऐसे मेरा प्लान कर लूँगी। ठीक है, अभी वो प्लान करने के बाद जब मैं चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू करती हूँ, फॉर लंच आई एम टेकिंग लंच एंड आई एम डूइंग लंच, देन ब्रेकफास्ट, और आई एम कलेक्टिंग बुक्स, मुझे क्या क्या बुक्स चाहिए ये सब मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ऑर्गेनाइजिंग थिंग. सो द सेकेंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग. Let's read the meaning of organizing. Organizing is the process of identifying. It is the process of what? Identifying, bringing the required resources together, such as man, material, money, machine, and method, grouping and arranging them properly for achieving the objective. Very perfect. When you talk about the organization, when you talk about the organization, in an organization you assemble certain things like employees, money, material, machines, factories, land, everything, and then you form an organization. What you're doing is you're assembling your all the assets or stuff that you require, and then you are organizing the organization. So what you're doing, to run an organization you have to organize the organization first. So what is organizing? Organizing is the process of identifying, bringing the required resources together, such as man, material, machine, and method, grouping and arranging them properly for achieving the objective. In planning, the management decides
what is to be done in future, whereas organizing functions decides the way and mean to achieve what has to be done. अच्छा, अगर आपको प्रॉपरली अगर एकदम से समझना है कि क्या है भाई प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि प्लानिंग में क्या होता है, यू डिसाइड, द मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट हैज टू बी डन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में करना क्या चाहिए आप बैठ के वार्तालाप करके डिसाइड करते हो, ठीक है. बट इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट यू डू इज you decide the ways and means to achieve what has been planned. जो भी planned है, आप खड़े होते हो दूसरे दिन से या जब से आप काम करना शुरू करते हो, you start assembling things, आप ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हो. अगर एक और एग्जांपल लेके अगर हम ऑर्गेनाइज को एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो वो हो सकता है कि आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर कर लिया है. नाउ इट्स टाइम टू ऑर्गेनाइज योर एम्प्लॉयमेंट्स. कैसे? मेरे पास 10 एम्प्लॉयज है, उसमें से मुझे अभी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. सेल्स का एक अकाउंट है, परचेज का डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. नाउ आई हैव टू ऑर्गेनाइज माई एम्प्लॉयज इन 3 डिपार्टमेंट्स. कौन कौन से डिपार्टमेंट में सूटेबल है, कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज लगेंगे, ये सब मैंने क्या किया, प्लान किया. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग, पुटिंग द एम्प्लॉयज इन द राइट डायरेक्शन. मैंने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया सबको कि 3 स्टाफ इधर जाओ, 4 स्टाफ इधर जाओ, 3 स्टाफ इधर जाओ, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड. This function is important for execution of the plans which have been prepared by the top level management people. जो हमारे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें प्लान करते हैं, एंड देन देयर इज अ टाइम टू एग्जीक्यूट थिंग्स, एंड दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. The synchronization and combination of workforce, physical, financial and informational resources are established in the process of organizing. ठीक है. So the synchronization and combination of workforce, physically, financial, सारी information resources को एक साथ लाके शुरू करना is organizing. Now let's move on with the definition quickly. We have 3 definitions. We'll read the definition and we'll move forward for the importance. So let's talk about something is given about the organization, that is the term organization is used to denote the structure. Very perfectly said. एक organization एक structure है to achieve the common motive or goal. It is a unit or a group of people who come together to achieve a common goal, whereas organizing is a process and a function. प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं टू अचीव अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. पर whereas what is organizing? Organizing is the process and functions that we take forward to achieve that common goal. Some of the definitions are given. First definition is organization is the form of every human association for attainment of a common purpose. वैसे ही जैसे हमने ऊपर पढ़ा. Organization, the second definition, organization involves the grouping of activities necessary to accomplish goals and plans, the assessment of these activities to appropriate departments, and the provision of authority, delegacy and coordination. एक सिंपल भाषा में बोले तो हमने प्लान कर लिया 10 एम्प्लॉयज का. अभी ऑर्गेनाइजिंग हमारा काम है कि उन 10 लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइज करना. ठीक है. The third definition, organizing is the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing the authority relationship amongst them. In performing the organizing function, the manager defines, departmentalize and assist activities so that they can be most effectively executed. तीनों में से कोई भी डेफिनेशन जो आपको इजी लगती है वो कर लीजिए याद. मेरे हिसाब से सेकंड डेफिनेशन जो है वो काफ़ी अप्रोप्रिएट और अच्छी लग रही है,
जो आप एग्जाम में लिखेंगे तो यू विल बी फॉर्मिंग अ गुड इम्प्रेशन ऑन योर चेक करने वाले टीचर्स, ठीक है. Before moving on to the importance of organizing, let me tell you one thing. Please, please, my humble request, please do exercise and practice these functions of management in your daily routine, and also experience it, so that you will be able to notice what are the steps, how to follow it, and even you can complete and accomplish your goals which you have set right now by using these functions of management. Let's proceed. Facilitates administrations as well as operations. Let's read. Organizing process leads to identify and to group the activities. वेरी करेक्टली सेड. आपकी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है भाई? मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पे काम आ रहा है और उनको अच्छे ग्रुप्स में, अच्छे एक्टिविटीज में डिवाइड करना है. ग्रुपिंग एंड असिस्टिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, whereas processing according to it is operational activity. Thus, organizing facilitates administrations as well as operations of the organization. Due to the proper grouping of the task and the employees, there is increase in production and reduction in wastage. Duplication of work is restricted and effective delegation becomes possible. When we talk about putting a right employee at a right position and having a good administration of that organization, what we are doing is indirectly we are increasing the production and reduction of and reducing the wastage in the organization. How? अगर हम सही एम्प्लॉय को सही जगह पे डाल के एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लगा लेंगे, तो व्हाट सिंपली वी आर डूइंग इज, अगर एक सही एम्प्लॉय सही जगह पे होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी उस चीज़ में ज़्यादा होती है, जिससे हम वेस्टेज को रिड्यूस भी कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज. So our first importance is facilitates administration as well as operation. What is next? Brings specializations. Organizational structure is a network of relationship in which the work is divided into units and departments. This division of work helps in bringing specialization in various activities of organization. Specialization is in activities lead to increase in organization efficiency. अच्छा, अगर सेल्स और परचेस डिपार्टमेंट दोनों भी कंबाइंड है और उन दोनों के बीच में कोई तालमेल ही नहीं है, देयर इज नो टुगेदरनेस और कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर डिपार्टमेंट्स एंड सच स्टफ, what will happen is your organization will stuck at certain level. So it's very important to form departments and units in your organization to form a good relationship which brings into specialization. अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज डिफाइंस द जॉब्स प्रॉपरली. वेरी परफेक्ट. एक ऑर्गेनाइजिंग करने से आप सबकी जॉब प्रॉपरली फिट कर सकते हो. अगर एक मजदूर है और उसको अगर आप कंप्यूटर पे बैठा दो तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएगा? और अगर कोई कंप्यूटर का स्किल पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड है, क्वालिफाइड है, और उसको अगर आप किसी वेजेस काम मजदूर वाले कामों में डाल रहे हो, तो आप ना उस एम्प्लॉय का जो काम है ना उसको समझ पा रहे हो, ना उस एम्प्लॉय को एक चांस दे पा रहे हो कि वो उसके अंदर अच्छा करके बता पाए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द जॉब्स प्रॉपरली. ठीक है. सो लेट्स रीड. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट men on right job, which can be done by selecting people for various departments according to their qualification, skills and experience. This is helping in defining the jobs properly, which clarifies the role of every person. So अगर पंच लाइन में मैं अगर बोलूँ, important, it's very important to understand what a employee is right on which job and how it can be done. तो जो भी एम्प्लॉय जिस भी जॉब के लिए अच्छा है, क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, उसको उसी के लिए आप लगाओ तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी
बढ़ेगी. Next is clarifies authority and responsibility. Organizational structure defines the role to every manager. हर एक मैनेजर का एक रोल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है. दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाइंग द वे ही हैज टू एक्सरसाइज दोज पावर्स. अच्छा, अगर आप एक राइट इंसान को एक राइट जगह पर डालो, उसकी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन देख के, तो वो उसके लिए अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाएगा. एक वैसे ही सेम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मैनेजर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाएगी, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी. सो व्हाट इट डज it just clarifies the responsibility of the individuals so that misuses of powers does not take place. Well defined jobs and responsibilities helps in bringing efficiency into managers workings. This helps in increasing productivity. एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इस जगह पर भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई दो डिपार्टमेंट के सेम लेवल वाले लोग हैं, उनकी सैलरीज को ध्यान रखना चाहिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं करना चाहिए. यू नो, मैनी अ टाइम्स व्हाट पीपल डज इज फीमेल्स को कम सैलरी एंड मेल्स को ज़्यादा. इट इज़ नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट. सो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान होना ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजिंग होना ज़रूरी है, और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना भी ज़रूरी है. चलो देखते हैं और क्या क्या हो सकता है एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने से. तो नेक्स्ट क्या है, इस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन. वेरी वेल, अगर हम एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग देते हैं अपने हिसाब से, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन जमा करते हैं. हाउ? अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट वालों को सेल्स में डाल के, परचेस डिपार्टमेंट वालों को परचेस में डाल के, उनके बीच में अगर एक ऑर्गेनाइजिंग करो कि भाई इतना अगर माल आ रहा है तो सबसे पहले परचेस वालों के पास जाएगा, वो रिकॉर्ड करने के बाद सेल्स वालों के पास जाएगा, एंड अगर कोई भी माल मुझे फिर से इन फ्यूचर खरीदना है तो परचेस डिपार्टमेंट वालों को पहले सेल्स डिपार्टमेंट वालों को पूछना पड़ेगा कि आपके पास अभी कितना स्टॉक बचा है. अगर ज़्यादा सेल हो गया है, फॉर एग्जांपल अगर सेल्स वालों का ज़्यादा सेल हो गया है और आपके पास नेक्स्ट माल ही नहीं है, परचेस डिपार्टमेंट वालों ने माल ही नहीं खरीदा, तो वो मिस ऑर्गेनाइजिंग है. आप अगर उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हो तो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो सकती है. लेट्स रीड. दिस फंक्शन हेल्प्स इन इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन amongst different departments of organization. It creates clear-cut relationship amongst positions and ensures mutual cooperation amongst individuals. Coordination or synchronization between all departments and a different level of manager is important for smooth functioning of organizational activity. Just as we we understood with an example of sales and purchase department. Next is helps for effective administration. Obviously, after having such a good coordination between the employees, you will have a very good administration. This function determines different positions, departments, activities, and the roles are clearly structured. The utmost care is taken while placing right person in right job with the right authority and right responsibility. It is achieved through division of work and delegation of authorities. This all leads to efficient and effective administration. मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम एक सही इंसान को सही जगह पे डाल के उसको एक अच्छी से म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन दे के उनका पूरा तालमेल बिठा के अगर हम सारा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऑब्वियसली की बात है कि एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा ही. अगर आप एक सही इंसान को एक सही काम करने के लिए बोल रहे हो एंड द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज रियली गुड, then there will be a very effective administration. Next is helpful for growth and diversification.
The growth of every organization depends on its smooth and efficient functioning. After putting the right person on the right job, in the right direction, giving his own right responsibility to himself, इतना सब होने के बाद अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, आपके एम्प्लॉयज सही जगह पर काम कर रहे हैं, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो ऑलरेडी अच्छी होगी ही होगी. सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस स्टफ, आफ्टर अ गुड ऑर्गेनाइजिंग of the organization, it will be helpful for the growth and diversification. Clearly defined roles and responsibilities, coordination amongst all level of management personnel, and use of appropriate control techniques brings efficiency at workplace, and organization grows well. This is possible only when the organization structure is well defined. आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होना चाहिए. भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इतने तीन डिपार्टमेंट्स है, इतने तीन डिपार्टमेंट्स में देयर इज नो मिस टॉकिंग्स, मिस कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. हमारे 3 डिपार्टमेंट्स के 3 हेड है और वो 3 हेड अपने आप में बात करके अपने अपने डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं. वेरी क्लियर विजन, एक क्लियर विजन आ जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को. Create sense of security. Organizational structures clarifies the job positions. It clearly states the duties and responsibilities of everyone. Everyone can work accordingly. Clarity in jobs and powers helps in increasing mental satisfaction, and it creates sense of security amongst the employees. आप अगर एक एम्प्लॉय को सही जगह पे डाल के, सही दिशा दिखा के, उसको एक सही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के, इसके साथ साथ आप उसको एक अच्छा सैलरी बैकअप दे रहे हो, उसको अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हो, उसको फैमिली सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट दे रहे हो, आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ ज़्यादा टाइम तक टिके रहेंगे. इसके अलावा आपके एम्प्लॉयज़ इफेक्टिवली वर्क करना जान जाएंगे और उनके दिमाग में एक सिक्योरिटी आ जाएगी, जैसे भी काम करना है इधर ही काम करना है और इसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा के काम करना है. सो इट ऑल्सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग्स द एम्प्लॉयज़. व्हाट्स नेक्स्ट? Scope for innovation. Okay. Organizing functions clears the roles and activities to be performed. मुझे एक चीज़ बताओ, हम बार बार एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि एक सही इंसान को सही जगह पर उसको सही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के, एक अच्छा डिपार्टमेंट सेट करके, अलग अलग यूनिट सेट करके अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करें तब वो ऑर्गेनाइज अच्छे से काम करता है. तो वो ऑर्गेनाइज इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद जो इंसान को जो काम आप अगर करने दो ना, वैसे अगर आपके घर में भी आप कभी ट्राई करोगे, आपके अगर कोई छोटा बच्चा है एंड उसको अगर आप रोज झाड़ू मारने बोलो तो शायद वो 2 दिन अच्छे से काम करे, बट तीसरे दिन वो बोर हो जाएगा. उसी के बजाय उसके अलावा अगर झाड़ू मारने के अलावा अगर आप उसको एक दिन बोलो कि यार आज हमारे घर पे गणपति बैठने वाले हैं, आपको डेकोरेशन करना है, वो बच्चा इतना अच्छे से इनोवेशन करके डेकोरेशन करेगा क्योंकि उस उम्र में उसको उसी चीज़ में इंटरेस्ट है. वैसे ही अगर एक इंसान ने बहुत सालों से किसी चीज़ के बारे में क्वालिफिकेशन लिया है और उसको उसी रोल पे बिठाया जाए तो वो उस चीज़ के बारे में इनोवेशंस कर सकता है. तो आफ्टर डूइंग सच थिंग्स इनोवेशंस के स्कोप बढ़ते हैं. लेट्स रीड. Employees can work by using their new ideas. This provides enough space to the manager to develop talents and flourish the knowledge. The scope for innovation into adopting new changes in methods of work is possible only through a set of organizational structure. Next and last is helps in optimum utilization of resources. जो इंसान को उसने पढ़ाई उसमें की है, जो इंसान को पता है कि ये काम कैसे होता है, वो ऑब्वियसली उस काम को कम रिसोर्सेज यूज करके यूज करेगा. अगर इसका भी आप एग्जांपल चाहते हो तो ऑब्वियसली अगर हम घरेलू एग्जांपल देखें तो अगर कोई एक इफ वी सी द
मदर एंड डॉटर रिलेशनशिप. अभी मम्मी रोज आटा गूंद के रोटी बनाती है. शी हैज़ एक्सपीरियंस एंड हैबिट ऑफ मेकिंग इट एवरी डे. तो वो क्या करेगी, काफ़ी कम आटे में वो आटा ज़्यादा गिराएगी नहीं एंड काफ़ी कम स्पेस में वो काम कर पाएगी. बट सडनली अगर आप उसके डॉटर को वो अगर सिखाना चाहती है एंड न्यूली वो उसको बोल रही है कि ऐसे ऐसे करो, तो श्योरली बहुत सारा आटा गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, कभी पानी ज़्यादा गिर जाएगा. यू हैव टू यूज़, आपको न चाहते हुए भी ज़्यादा आटा यूज़ करना पड़ेगा. सो व्हाट हैपेंस इज, किसी भी इंसान को अगर नया आप सिखाते हो या अगर उसको काम वो नहीं आता तो भी वो कर रही है, तो रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ होता ही है. बट अगर हम ऑर्गेनाइजिंग अच्छा करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑल्सो रिसोर्सेज भी कम यूज होते हैं. सो दिस फंक्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट एम्प्लॉई अकॉर्डिंग टू द जॉब specialization. Due to this, specialization of work becomes possible. This right for workforce utilizes others resources at its optimum level so that desired results are achieved within defined period. Fantastic. We have completed with the functions of functions of management. Second part also we've completed with the meaning, definition and importance of organizing. Hope you like this video. If you do, please like, share and subscribe, and also you'll get all my updates in the playlist in my account. And if you want to see our previous series called Sources of Corporate Finance from SP, this is chapter number 2. You can go on my account and check in the playlist below. And yes, if you do like it, then please share it with your friends of your 12th standard and help them also during the exams to revise. Thank you so much.